بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود السلام محمد آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ من الصادقین۔ حضرات مومنین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اے ایمان لانے والو، تقوی حاصل کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 3 مرحل اور 3 پڑاؤ ہے۔ پہلے ایمان کی دلیل ہے، ایمان خدا اور رسول اور ہر اس بالغیب جو جنت جہنم عالم برزخ جو ملائک ہم نے دیکھا اس پر ایمان لانا اور ولایت پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتی ہے۔ جیسے رسول کے پاس کچھ جماعت آیا، ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان لوگوں نے ہم نے ایمان لایا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا یا رسول، ان لوگوں نے اسلام قبول کے ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب ایمان تب صحیح ہے جب ولایت دل میں ہے۔ جب مولا علی کا ولایت قبول ہو جائے گا تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کے بعد تقوی ہونا ضروری۔ تقوی کی معنی جس چیز سے قرآن نے روکا اس کو روکنا ہے، گریز کرنا ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ اپنانا ہے۔ جیسے جس چیز کا منع ہے، جیسے شراب، چغل خوری، شراب، چرس، جتنے بھی حرام ہیں ان سے گریز کرنا ہے۔ جیسے بدکاری، یہ چھوڑنا، یعنی متقی بنا، خدا اور رسول جس چیز پر منع کیا اس کو پیچھے رہنا، حلال کی طرف تقوی کرنا یعنی رغبت کرنا، اس کو متقی کہتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہ صحیح نہیں ہے جب تک صادقین کے ساتھ نہیں ہو جائے گے۔ صادقین قرآن کی روشنی میں محمد آل محمد۔ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے سورہ آل عمران، اصل میں ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے طالب کا باپ، اس کا بڑا بیٹا ہے طالب، اصلی اس کا نام ہے عمران۔ اس لیے سورہ آل عمران اس میں بہت ذکر ہے۔ جس انسان کو ابو طالب علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کو نہ محمد سمجھ آئے گا نہ خدا سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ ابو طالب وہ شخصیت ہے جس نے ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا، تبھی تو مسلمان ہیں۔ سب نے محمد کا کلمہ، جو امت ہے ان لوگ پیغمبروں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا، کیونکہ یہ رحمت للعالمین۔ تو ہم مسلمان ہیں جس نے محمد کو گود آغوش میں پالا، پروان کو چڑھایا، انگلی پکڑ کر سکھایا، نکاح بھی اسی حضرت ابو طالب نے پڑھا، کتنا دفاع کیا، جس کی شان میں سورہ رحمان میں آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مسلمانوں نے بنی امیہ نے وہ کافر کی فہرست میں ڈالا، یعنی یہ کافر ہے۔ اب دیکھو کتنا گھٹیا سوچ ہے۔ ہم تب مسلمان ہیں جب ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا، جس نے محمد کو بھی پالا۔ وہ یہی ہے جو کربلا کا جنگ ہے، یہ حضرت ابو طالب کا اولاد لڑ رہا ہے بنی امیہ کے ساتھ۔ تب آپ کو سمجھ آنا چاہیے ابو طالب اس کا باعث ہے، اس نے بہت مدد کیا جناب محمد۔ اس کے بعد اگر مدد کیا دوسرے نمبر پر وہ ہے مولا علی، دعوت ذی الحشیرہ سے جنگ موت تک 85 جنگ ہوا کافروں کے ساتھ یا یہودی، اس کے ہر وقت میں مولا علی کے ہاتھ میں جیت آیا، یا جعفر طیار یا حضرت حمزہ، یہ بھی ابو طالب کا خاندان ہے۔ اور جو کربلا میں لڑ رہا ہے یہ جناب حسین کا کچھ اصحاب تھا، کچھ انصار تھا، اور باقی پورا ابو طالب کا خاندان اپوزٹ ابو سفیان یعنی معاویہ یزید کا خاندان ہے۔ ان لوگوں نے اپنی دولت کی بیس پر، یعنی اس وقت یعنی حکومت کے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا، کہ حکومت طاقت رکھتا ہے جیسے ہندوستان میں ہے، کوئی نہیں آواز اٹھے گا۔ اس لیے اس وقت جیسے حکومت کے خلاف نمرود نے آواز اٹھایا، آگ میں پھینک دیا، یا حضرت موسیٰ نے، اس وقت بہت کنٹریوں پر یزید کا حکومت چل رہا ہے، یعنی کٹھپتلی حکومت۔ اس نے اپنے عروج کے پورے ملک کا لشکر مدد لیا، جیسے اس وقت جنگ ہو رہا ہے، دوسرا مدت میزائل بیچ رہا ہے۔ اس وقت
पूरे लश्कर यजीद के हक़ में आया हुसैन के ख़िलाफ़। हुसैन सिर्फ 72 आदमी था, हुसैन जंग करने नहीं, उस लोग ने हुसैन को घेरा, यानी अपनी दौलत ख़जाना निकाला हुसैन के ख़िलाफ़। क्योंकि क्या मतलब है, हुसैन बैत करेगा, मुझे झुक जाएगा, बैत माने अपने आप को बेचना, तब मैं कहूँगा देखो मैं हमारा खिलाफत क़यामत तक चलेगा। मगर हुसैन ने ऐसा तमाशा मारा बनी उमैया को, सुबह क़यामत तब तमाम लानत की तोक पहना और वास्ते जहन्नम हो गया। मोमिनीन का रोश, इसलिए ये जो जुलूस निकलती हैं हर जगह, ये मातम का जुलूस नहीं है, नादान ये ना समझो, ये जीत का जुलूस है। यानी अलम वही उठाता है, ये अलम है हुसैन का जीत है, बनी उम्मी के हार है कि वो खिड़की से देख रहा है, क्योंकि वो उनको ताकत नहीं है। जुलूस किसकी जुलूस निकाली? माविया की जुलूस निकालेंगे, यजीद का अलम उठाएंगे, वो जलाकर राख हो गया। इसलिए हुसैन बादशाह है, दीन का बादशाह, दीन का हिफाजत करने वाला हुसैन है। उसी हुसैन का मातम मोमिनीन करती है। हमको ये लालच नहीं है हमको जन्नत मिलेगा, हमको कोई टेंशन जन्नत का, हमने जन्नत का मालिक का दामन पकड़ा, जन्नत खुद ब खुद मोमिन को आएगा। जो लालची इबादत करेगा, हज करेगा जन्नत की खातिर, उन नादानों को ये पता नहीं, उन बेवकूफ़, इसलिए खुदा फरमाता बहुत लोग बेवकूफ़ है, दाना बेवकूफ़ जन्नत में नहीं जाएंगे। बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ वो है अगर कोई मेरे घर पर इस वक्त आएंगे, उसको बाहर दकुलबाब देना, इज़्ज़त देना, जब मैं इजाज़त दूंगा तब उसको अंदर आना। जब मैं एक मामूली आदमी है, ये सब कुछ खुदा का है। जो जन्नत है, जन्नत का मालिक ढूंढना कौन है, ये इसलिए मैंने आयत पढ़ा। सादिकीन है सूरह आल इमरान आयत नंबर 61, उधर 5 दिन पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा हसन, ये जन्नत का मालिक है। जब उनके साथ राबिता है, तो अगर अमल कम भी है, उसमें गड़बड़ भी है, तो जन्नत हर हाल में मिलेगा, क्योंकि गुनहगारों को शफात हो जाएगा, मुजरिमों को नहीं। अगर उनके साथ राब्ता नहीं, कितना भी इबादत लेकर आएंगी, आपको उसको जहन्नम में जाना ही जाना है। क्योंकि पैगंबर ने कहा, ऐ जबराइल, जब मैदान महशर पुलिस रात पर जिसके हाथ में पुलिस यानी इस कागज़ जो उधर देंगी, जो नाम अमाला इंसान का हो, तो जब मौला अली का मोहर है उसी को जन्नत मिले। क्योंकि करबला में हज़रत अबू तालिब का ख़ानदान लड़ रहा है, तो सब के सब जितने भी पूरे ज़मीन पर इंसान हैं, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चन, चाहे बुद्ध, चाहे ईसाई, चाहे यहूद, सब ने मोहर लगाया हुसैन हक है। जब हुसैन हक है, हुसैन खाली हक नहीं है, उससे पहले जितने भी हुसैन के आबा व अजदाद है, मौला अली, अबू तालिब, हमज़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत खदीजा, वो सब हक है। जो उसको मुस्तकबिल है, उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्री, इमाम महदी आखिर ज़मान, ये सब के साथ हक है। ये हुज्जत खुदा है। जितने भी मरजा है, जितने भी आयत सब है कि जो उसके अपोजिट है, सब के सब बातिल और जालिम है। ये करबला मकसद है। और करबला ने ये पैगाम दिया, जब हम कहते हैं ना एक ज़ियारत पर, अगर हम करबला होते तो हम लड़ेगा, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लड़ो। जहाँ आपको यजीदी नज़र आएगा, जुल्म, यजीदी कौन है? जिसके अंदर जुल्म है नज़र आएगा, 1% या 100%, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। चाहे वो आपकी घर में है, बहू की शक्ल में, सास की शक्ल में, ससुर की शक्ल में, बाई की शक्ल में, जिस शक्ल में, चाहे महल्ले में कोई गुंडा की शक्ल में या कोई अमीर आदमी उसकी शक्ल में, जिस शक्ल में आपको जुल्म नज़र आएगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये वाजिब है, तब आप हुसैनी हैं। अगर आप खाली मातम करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप समझिए मातम नहीं है, पिटाई के सिवा कुछ नहीं। मैंने उससे पहले ही कहा, मोमी लोग, इमाम सादिक ने फरमाया, हमारे चाहने वाले गुलाब हैं। गुलाब जहाँ गुलाब जाएंगे खुशबू फैलाएंगे, जहाँ कांटे मिलेगा वो ज़ख्म देगा। कांटा जब जमा कर दिए उसको जलाता है, गुलाबों को जलाता नहीं। इसलिए मोमिन गुलाब है, मगर जब उनको इल्म सीखना, इल्म हासिल करना,
तभी तो बातिल को जवाब देंगे। उनको हर अंदर, हर मोमिन को भी गुनाहगार हो सकता, मोहर सिर्फ 14 मासूम, हम गुनाहगार दिन में पता नहीं कितना गुनाह होता है, मगर कोशिश करना इंसान को जुल्म का अलम नहीं उठाना, किसी पर जुल्म न करना, चाहे हाथ से, चाहे ज़बान से, चाहे आँख से, चाहे किसी भी मरहला, कि जालिम के यजीद की खातिर आएगी। इसलिए मोमिन को चाहे हमेशा आपस में शीर शकर, हुसैन का काम है मोहब्बत फैलाना, यजीद का काम है नफ़रत फैलाना। हुसैन का काम है हलाल से हलाल फैलाना, यजीद का काम की गंदगी फैलाना। हुसैन का काम है रोशनी फैलाना, यजीद का काम है अंधेरी फैलाना। हुसैन का काम है मज़लूम को मदद करना, यजीद का काम है मज़लूमों को कत्ल करना। हुसैन का काम है ख़वातीन, चाहे माँ, बहन, बेटी, उनको इज़्ज़त करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, लव करना। तो हुसैन का काम क्या है? उनको पर्दा छीनना, उनको जुल्म करना, उनको कोड़े मारना, उनको अपने रखेल में रखना, ये यजीद का काम है। अब जिस जिस अंदर को ये सिफत मिलेगा वो हुसैन ही है। मैं यही का हर जंग हुआ, करबला का जंग अलग है, करबला का जंग अलग आपको नज़र आएगा, क्योंकि किसी भी जंग में ऐसा तूफ़ान है जैसे करबला में छोटी बच्चियों पर, जैसे अभी तो शहादत चल रहा है जनाब सकीना की, 4 साल की बच्ची, उन लोगों ने वो भी नहीं छोड़ा, उसको भी गोशवार छीन कर उसका गोश्त, कान ज़ख्मी हुआ, यानी ऊँट पर शुमर ने वो रस्सी से बांधा। वो मैं अगर तफसीर में बताऊं कि क्यों बांधा उसने, जल्दी ये काफ़िला शाम हो जाए। किस बेबसी की आलम में इमाम हुसैन का लाडली बेटी शहीद हुआ, उसको न पानी मिला न कफन मिला, किस हालत में इमाम ज़ैन आबिदीन ने दफन किया उस कैद खाने में। इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ा रोज़ा है, जिन लोगों ने वो कत्ल किया रो रो कर, अब उनका कब्र जहन्नम में है, उस वक्त भी रोज़ा उसका है। कितना तड़पती है बाबा के खातिर, कितने रो रहा है, उन लोगों ने उस पर भी जुल्म, मारो छोड़ो, कितना ताज़ियानी मारा शुमर ने उस 4 साल की बच्ची पर। यह है यजीदी हरकत, हमेशा बच्चों को, मासूमों को प्यार मोहब्बत करना, यह हुसैन का काम है। हुसैन का काम है भूखा को प्यास। इस वक्त देखो हर जगह, कश्मीर भी हर जगह इस वक्त कितना पानी बांटता है, खाना देता है फ्री, आओ यहाँ हर जगह। अभी मैंने सुना कश्मीर में ये बारिश नहीं पड़ता, पूरा फसल ख़राब हो गया। ये अल्लाह का मर्ज़ी है, दुआ करना, जो अल्लाह करता सही करता है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चलेगा। यहाँ बारिश ही बारिश है, उधर एक कतरा भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये अल्लाह जानता है क्या हुआ। अल्लाह से दुआ करो, बसत के ज़मीन करबला जनाब अली असगर का खून के वास्ते उसको दुआ करो कि कश्मीर में खुदा बारान रहमत नाज़िल फरमाए, ताकि तमाम कश्मीरी लोग जो वो सैराब हो जाए, उनका फसल, उनका कभी इसने अभी मैंने किसी ने फ़ोन किया नौगाम की तरफ, उन लोगों ने कहा गुलजार साहब हमको पीने के पानी भी नहीं है, हम दूसरी गाँव से लाते। इतना है गलत कश्मीर में। खुदा उस फरात के वास्ते, अली असगर के वास्ते बारान रहमत नाज़िल फरमाए इन्हीं दिनों में, ताकि तमाम सैराब हो जाए, हमारा फसल जितने भी है वो सैराब सब साद हो जाएगा और पानी का रवानी हो जाए। शायद हमारी गुनाह है। जब हर मजलिस में आप लोग दुआ करो, जब मजलिस के बाद दुआ ज़रूरी करना जनाब ज़हरा बासद, यकीनन बारिश आ जाएगा उस फरात के वास्ते, उस करबला के शोधे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।